السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز. ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابی معاملات پر فریال تالپور سے مشاورت کی جائے. پیپلز پارٹی کے وفد نے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی مبینہ مداخلت پر اظہار تشویش کیا. پارلیمانی وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے. اجلاس میں کشمیر کاز کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کی مؤثر سفارتکاری کو سراہا گیا ہے. اس وقت نمائندہ ABN نیوز رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان بتائیے گا. دیکھیں، رات کے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پارلیمانی وفد کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کی قیادت چودھری یاسین کر رہے تھے. اس ملاقات میں جو ملکی علاقائی اور انتخابی امور ہیں ان پر مشاورت کی گئی ہے، اور آئندہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگلے سال آزاد کشمیر میں، اس حوالے سے آزاد کشمیر کی قیادت کو اہم ٹاسک بھی سونپے گئے ہیں. اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سیاسی شخصیات کے لیے پیپلز پارٹی کی دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہیں، اور آئندہ سیاست اور ممکنہ منظر نامے پر بھی تفصیلی وہ روگوز کیا گیا ہے. صدر مملکت نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس کو انتخابی امور کے سلسلے میں فریال تالپور سے مشاورت کی ہدایت کی ہے، اور پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور جو مبینہ مختلف امور میں مداخلت ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا جائے. اور اجلاس میں اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے وزیر اعظم کو موجودہ صورتحال سے فوری طور پر آگاہ بھی کیا جائے. اور اجلاس میں جو پاک بھارت حالیہ جنگ ہوئی ہے، مارکہ حق کی جو کامیابی ہے، اس پر صدر مملکت آصف علی زرداری کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو بھی زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. اور کشمیری قیادت نے بلاول بھٹو زرداری کی جو مؤثر سفارتکاری ہے اس وقت جو بیرون ملک کے دورے پر ہیں اس پر عالمی سطح پر جس طرح کشمیر کے معاملے کو اجاگر کر رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے مبارکباد پیش کی. اور شکریہ رضوان عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد برسلز پہنچ گیا ہے. پاکستانی وفد برسلز میں یورپی رہنماؤں سے ملاقات میں پاکستان کا موقع پیش کرے گا. وفد بھارت کے پاکستان مخالف جارحانہ اقدامات سے بھی یورپی حکام کو آگاہ کرے گا. پارلیمانی وفد ملاقاتوں میں غلط معلومات پر مبنی بھارتی مہم کا مؤثر جواب دے گا. کراچی کے علاقے قائد آباد میں زلزلے کے جھٹکے رات 1:44 پر محسوس کیا گئے. زلزلہ پیماد مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.6 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر جبکہ مرکز ملیر کے جنوب میں تھا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ انڈیا کو کان سے پکڑ کر مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے. انڈیا کے جارحانہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن مشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. بلاول بھٹو کی لندن میں نیوز کانفرنس کہا کہ بھارت کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. بھارت سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے. بلاول کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. پاکستان آج بھی امن کی بات کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے. پاکستان آج بھی امن کا بات کر رہا ہے اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے. آج ہم برسلز جائیں گے اور یہ پیغام یورپین یونین کو پہنچائیں گے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں غیر معمولی شراکت دار ہے. امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی فارن افیئر کمیٹی کو بریفنگ. کہا پاکستان کے ساتھ امریکی انٹیلیجنس تعاون کے ٹھوس نتائج برآمد ہوئے ہیں. پاکستانی تعاون کے باعث درجنوں داعشی ہلاک ہوئے اور کئی داعشی کمانڈر گرفتار کیے گئے. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS core. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area
killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात और इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे करार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय रवैया खिते में अमन इस्तेहकाम के तकाज़ों के मनाफी है और भारत की जानब से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा कर मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत की सरहद पर दहशत गर्दी और मुदाखलत के सबूत दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और दरअसल इसकी सफारती नाकामी और मायूसी का मजहर है। पार्लियामान ने कानून साजी में मदद न की तो इजाफी टैक्सेस लगेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के तबाहकुन बजट पेश करने के बाद मजीद टैक्सेस लगाने की वार्निंग। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अगर हम एनफोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। कानून साजी ना की गई तो 400 से 500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। हमने खसारे से इब्तिदा की है। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर दे रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में 2016 के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अगर सालाना इजाफा होता तो ये बड़ा मसला न बनता। मिड साइज कॉर्पोरेट इदारों पर सुपर टैक्स में कमी की गई है जिसे मुस्बत कदम करार दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%। उन्होंने कहा, ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज किया गया है ताकि फॉर्मल और ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में बराबरी लाई जा सके। वज़ीर ख़जाना का छोटे घरों के लिए कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ कराने का इंदिया। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF को ज़रूरी टैक्स न लगाने पर कायल किया गया। मौजूदा बजट में सिर्फ 312 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस शामिल हैं। बाकी आमदन खुदकार तरक्की और नफाज से हासिल की जाएगी। अगर किसी को अपना घर बनाना है, खास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वज़ीर ख़जाना का कहना था, कैश बेस्ड मईशत को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ मौजूदा हद में एडजस्टमेंट की जा रही है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स सिर्फ असेंबल्ड पैनल्स पर लागू होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और मरात में बेतहाशा इजाफा गैर मौजू और गैर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें आम आदमी की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारी तमाम इज्जत और आबरू इसी की मरहून मिन्नत है। अवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दो, ये है शहबाज हुकूमत की पॉलिसी। सरकारी मुलाजिम के तनख्वाह में 10% इजाफा भी मुश्किल से किया। अरकान पार्लियामेंट के लिए तनख्वाह में 300 और 500% इजाफा भी खुशी खुशी मंजूर कर लिया। हर सियासतदान गरीब का नाम लेकर वोट लेता है। गरीबों का नाम लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को उस वक्त सांप सूंघ जाता है जब गरीब पर सरकारी खजाने से कुछ खर्च करना हो, लेकिन अपने लिए सरकारी खजाने को मुफ्त का माल समझा जाता है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा करके एहसान जताया जाता है। वजीर खजाना की सुने तो वो कहते हैं, चादर देख कर ही पाँव फैलाने हैं। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। महंगाई नीचे आ रही है, उसी तनासब से तनख्वाह और पेंशन बढ़ना थी। जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। यही वजीर खजाना अपने साथी अरकान कौमी असम्बली के लिए तनख्वाहों में 300% इजाफा करते हैं। उस वक्त उन्हें चादर याद आती है, न माली गुंजाइश न महंगाई के तनासुब से तनख्वाह बढ़ाने का मशवरा। स्पीकर और कौमी असम्बली के लिए तो न सिर्फ तनख्वाह 500% बढ़ाई जाती है बल्कि उसका इत्तलाक भी 6 माह पहले 1 जनवरी 2025 से कर दिया जाता है, क्योंकि सीनियर सहाफी नुसरत जावेद के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन गुर्बत से ही बहुत परेशान थे। तो ये जो क्लर्क बेचारा UDC, LDC या सरकारी मुलाजिम, उसका 10% बढ़ा दिए। तालियां, बहुत एहसान किया, बहुत शुक्रिया आपका। उसके मुकाबले में नाम है सरदार अयाज सादिक, उनकी थी 2,05,000 रुपए। ओह, ये तो बहुत कम है। सरदार साहब इससे सरदारी कैसे था। तो जनाब अब उनकी तनख्वाह में जो है वो बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दी गई।
प्रोड्यूसर रजा गिलानी साहब इतने गरीब हो रहे थे, जमीनें बेच रहे थे बेचारे, या क्या हो रहा था कि ये इजाफा जो है ये 1 जनवरी 2025 से लागू, 6 महीने पहले तो। गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले किसी रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर को सरकारी खजाने से तनख्वाहें बढ़ाते शर्म नहीं आती। अरकान पार्लियामेंट को 1,80,000 माहाना तनख्वाह कम लगी तो अब एक रुकन की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी, उसमें उनका गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए हुकूमत ने 500% इजाफे के साथ स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर करती है। 336 सरकारें कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स अब कौमी खजाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख तनख्वाह लेंगे, यानी एक साल में सरकारी खजाने से अरकान पार्लियामेंट को सिर्फ तनख्वाह की मद में 2 अरब 71 करोड़ से जायद मिलेंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सरकारी खजाने से सालाना 3 करोड़ से जायद तनख्वाहें लेंगे। मुफ्त पेट्रोल, एयर टिकट और सफरी अखराजात के अलाउंस तनख्वाह के अलावा है। ये हैं गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे। विफाकी बजट में क्या सस्ता होगा और कौन सी अशिया महंगी हो जाएंगी, आवाम को इस बजट से किस कदर रिलीफ मुयस्सर आएगा, इसी बारे से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान व गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर भी टैक्स नाफिज होगा। कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। अंदरूनी मुल्क तरसील की जाने वाली अशिया खोरोनोश समेत हर किस्म के सामान की बिल्टी पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है। वफाकी बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज दी गई। डिजिटल इनवाइसिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 0.25%, जबकि कपड़ों की खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। हब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई गुज़श्ता कई घंटों से बंद, शहर मज़ाफ़ात तारीकी में डूब गए। दिन भर बिजली की बंदिश और शदीद गर्मी के बायस सार्फिन सख्त परेशान हैं। बिजली बंदिश और शदीद गर्मी के सबब हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों समेत घरों में मौजूद उम्र रसीदा अफराद, बच्चों और ख़ातीन को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। रात के औकात में भी बिजली बंदिश के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरियों ने हुकाम से बिजली की तवील लोड शेडिंग पर नोटिस लाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, हैदराबाद में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की उन्वान से जमे खाना ग्राउंड में एक रंगारंग टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें लड़कों और लड़कियों ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद अखबार जानते हैं अब्बास अली वाहिद की रिपोर्ट में। हैदराबाद जिम खाना में खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आज भरपूर एक्शन में नजर आए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के उन्वान से मुनक्किद इस टेनिस टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, बल्कि अमन, हम आहंगी और मुस्बत सरगर्मियों को फरोग का पैगाम भी दिया। टेनिस टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन और MBA साबिर हुसैन कायम खानी ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबा एंड अभी मैंने टेनिस में फर्स्ट पोजीशन गर्ल्स की तरफ से, सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और मैंने बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, इस तरह के इवेंट से हम लोग सीखते बहुत हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि हम बहुत खुश हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इस तरह के इवेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जी, आज का जो इवेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो बनियानुल मरसूस के नाम से डेडिकेटेड ईसा लैब टेनिस चैम्पियनशिप हुई है और पूरे सिंध के प्लेयर्स आए हैं आज हैदराबाद। और हैदराबाद जिमखाना की जो मैनेजमेंट है बहुत ही आला मैनेजमेंट है। उसने एक ऐसा इवेंट होस्ट किया कि हम ईसा लैब चाहती है कि आगे चल के हैदराबाद में इंटरनेशनल इवेंट होस्ट हो। जबकि ईसा लेबॉरेटरी के CEO डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि हमने आज का टूर्नामेंट ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के उन्वान से रखा है और आइंदा भी इसी तरह से टूर्नामेंट करवाते रहेंगे। टेनिस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करना और मुद्दत सरगर्मियों के जरिए माशरती हम आहंगी को फरोग देना था, जो बिलाशुबा कामयाब रहा। कैमरामैन कामरान के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के मरकजी दफ्तर में पाक आर्मी से यकजहती ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए काफ लीग के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर वज़ीर तिजारत और इन्वेस्टमेंट पंजाब नदीम पहलवान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल मैनचेस्टर से इसहाक चौधरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के सदर सैयद रिजवान हाशमी की जानिब से मरकजी ऑफिस में मुनक्दा तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए मोहम्मद नदीम पहलवान का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को 10 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर साहबा ने और सालिक साहब ने और शाफे साहब ने, चोइस शुजात साहब की ये सारी क़यादत में एक ऐसा माशाल्लाह ओवरसीज़ वालों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है कि तमाम ओवरसीज़ वालों को आज मैं दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान आएँ, इंशाअल्लाह ताला हम आपको इज़्ज़त, मुकाम और ऐसा गेटवे देंगे कि जिसमें आपको इंशाअल्लाह ताला 10 साल के लिए ना तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है इंशाअल्लाह हर अदारे, हर महकमे आपको इज़्ज़त देंगे और वेलकम करेंगे। इस मौके पर सैयद रिजवान हाशमी सदर मुस्लिम लीग काफ बरतानिया वुमेंस विंग की सदर अजरा काजी समेत दीगर ने मसल्ह अफवाज और हुकूमत की कारकर्दगी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और उन्हें यकीन दिलाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज के शाना बिशाना खड़े हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का जो किरदार रहा और जो ज़बरदस्त फतह हासिल की गई उस पर हम अपनी अफवाज, खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो नेवी के चीफ़ हैं और एयरफोर्स के चीफ़ हैं, उनको भी हम खराज तहसीन और सैल्यूट पेश करते हैं। पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से हम आराम से अपने घरों में सोए होते हैं, हमारी सरहदों पे वो हमारी हिफाजत के लिए होते हैं और इन सब चीज़ों को हम पाकिस्तान को भी जिस तरह ये आगे कह रहे हैं हमें ओवरसीज़ के हम यहाँ से वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमें उस चीज़ के लिए भी बड़ा फ़ख्र है कि अब हम अपने आप को सेफ समझते हैं। फ़ौज जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है, हम उनका जितना भी शुक्र करें, जितना भी एहसानमंद हो वो कम है। गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है encouraging overseas Pakistanis to visit Pakistan. They have a very solid 10-year project which they will obviously share with Pakistanis overseas. तकरीब में शरीक काफ लीग के ओहदेदारान ने पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया और ऑपरेशन बुनियान मरसूम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।